Hello students, I hope you guys are doing well at your home and also revising the chapters which has been taught to you. Okay, and I hope you are also doing the numerical quotient which are given in your textbook. So as of now, this is we have learnt about your first chapter, that is measurement, and we have learnt a lot of things like moment of force, and we have learnt a lot other aspects like how we can take up an instrument to measure time. We can take up an instrument to measure length, as well as we can take up instrument to measure mass. Okay, so as of now we have learned about all these things. Okay, so in today's session we'll learn how we can measure a time. Okay, so although there are many other aspects through which you can measure time, like digital watch, you can use wristwatch, and numerous other instrumental time measuring devices are there through which you can easily measure time accurately or with a precision. Okay, so in today's session I'll discuss one of the time measuring device, that is simple pendulum, which is there in your course. Okay, so let us discuss what is simple pendulum. And as you can see in this slide, a simple pendulum is a heavy point mass, which is also called as bob, suspended from a rigid support by a massless and inextensible string. What does it mean? It means if you will take a mass and you attach a string through it. Suppose I have taken this mass, which this mass is called as bob. Okay, and this mass is called as bob, and this mass is attached to a string and it is fixed from one particular point, and it is suspended like this, freely suspended in the gravity. So this setup is called as simple pendulum. And what can it do? It can measure time. Okay, and this string has to be inextensible. That means it cannot elongate or it cannot compress. So that this expression need to be taken care of. Okay, so and it should not also have mass. So आपको इस string का mass नहीं होना चाहिए और ये elongate भी नहीं होना चाहिए. वो string लेंगे आप इस टाइप के. So this setup will become a सिंपल पेंडुलम. ठीक है, ऑब्वियसली ये जो मास आपको सपोर्टेड है, दिस इज कॉल्ड बॉब. इट हैज़ टू बी बिगर. ठीक है, ज़्यादा थोड़ा सा भारी ले सकते हो आप. ठीक है, तब आपका एक्सप्रेशन क्या कहते हैं इज, तो जो टाइम पीरियड आएगा, ठीक है, ऑल्दो इट डज नॉट डिपेंड ऑन इट. ठीक है, बट ये है कि ये स्लैक नहीं होगा, मीन्स ये ऊपर नहीं जाएगा. अगर ये भारी होगा तो स्लैक नहीं होगा ये. ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ऐसे नहीं होगा. ओके, एंड as you can see in the diagram, this string length is L. if you have taken this, इसका अगर लेंथ आप ले लो, let it be L. स्ट्रिंग का लेंथ क्या है? L ले लिया आपने. ठीक है, ये मास है, ये आपका बॉब है. ठीक है, ओके, अब मैं इसको क्या करूँ, एक पुश दो इधर से. ठीक है, एक एंड पे ले जाओ और हल्का सा इसको आगे छोड़ दो. सो व्हाट इज इट डूइंग? इट इज़ ऑसिलेटिंग. ठीक है, ये ऑसिलेट कर रहा है और ये इसका मिडल पॉइंट है जहाँ पे ये ऐसे रेस्ट कर रहा है. दिस इज इट्स मीन पोजीशन. ये मीन पोजीशन पे रेस्ट करता है. ठीक है, जितना ऊपर ले जाओगे, दिस इज इट्स एक्सट्रीम पोजीशन. ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है. ठीक है, तो एक्सट्रीम पोजीशन से इसको छोड़ दोगे तो इट विल ऑसिलेट जस्ट लाइक दिस. इट विल मूव फ्रॉम इट्स वन एक्सट्रीम पोजीशन टू इट्स अनदर एक्सट्रीम पोजीशन. इस एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा. अगेन ये वापस आएगा. अगेन दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू. ठीक है, और अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो इट विल कंटिन्यू टू ऑसिलेट, बिकॉज देयर इज एयर फ्रिक्शन. दैट्स व्हाई इट टेंड टू स्लो डाउन आफ्टर सम पर्टिकुलर टाइम. ठीक है, सो अगर एयर फ्रिक्शन नहीं होता, सपोज दिस सेटअप इज इन वैक्यूम, सो इट विल कंटिन्यू टू ऑसिलेट. ये कंटिन्यू ऑसिलेट करता ही रहता. ठीक है, सो this is its mean position and this is its extreme position 1, extreme position 2. Okay, so this is all about simple pendulum. Okay, we'll discuss some other aspect also of simple pendulum, so let us move on. It oscillates and measures times. It oscillates about its mean position that you need to learn. Okay, एक चीज़ और आपको यहाँ पे बता देते हैं हम. ठीक है, जैसे कि ये ऑसिलेट करता है. ठीक है,
ये एक पर्टिकुलर हाइट पे चला गया, अगर ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है, इस पे एनर्जी, ठीक है, कोई नहीं है। अब दिस इज इट्स रेफरेंस पॉइंट, ये रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी तो अभी है नहीं इसमें, क्योंकि इफ इट इज़ नॉट इन मोशन। जैसे ही मैं कुछ आगे लेके जाऊँ इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो क्या होगा? सो ये अपना जो पोजीशन था ये वाला, और ये इसका जो एक्सट्रीम पोजीशन है ये वाला, इन दोनों के बीच में हाइट का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। हाइट का डिफरेंस का मतलब पोटेंशियल एनर्जी इसने गेन कर लिया है, तो ये जैसे ही इधर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इसने गेन कर लिया है, ठीक है। अब मैं इसको छोड़ दूंगा, ऑब्वियसली ये पोटेंशियल पूरा कन्वर्ट किस में होगा? काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो जैसे ही ये ऊपर वाला जितने से पोटेंशियल गेन किया है सारा पोटेंशियल कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक में, तो दैट्स वाई एट इट्स मीन पोजीशन इट विल एक्वायर द मैक्सिमम स्पीड। जब ये वापस आएगा तो इसकी सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी, क्योंकि पूरा का पूरा काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किस में हो गया है? काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। जस्ट लाइक दिस, ऐसे देख सकते हो आप, ठीक है। इट विल ऑसिलेट लाइक दिस, ठीक है, देखो इट विल ऑसिलेट लाइक दिस, ठीक है। सो दैट मीन्स कि पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है। अगेन जब ये मीन पोजीशन पर आ गया, जो भी काइनेटिक एनर्जी है इसके अंदर गेन कर लिया है इसने, ठीक है। तो अब ये काइनेटिक एनर्जी जब ये इधर जाएगा दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो पूरा पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू, ठीक है। ये पोटेंशियल कन्वर्ट हुआ यहाँ पे काइनेटिक में, काइनेटिक कन्वर्ट हुआ फिर पोटेंशियल में, फिर पोटेंशियल कन्वर्ट हुआ काइनेटिक में, एंड सो ऑन। As long as there is no friction, this setup will continue to move on its own. Okay, so if friction is there, so that's why it tend to slow down. हर एक इसको स्पीड को स्लो डाउन करता चला जाएगा, ठीक है। So this is about oscillation. Oscillation का मतलब movement. It will move to and fro. Okay, so that means what is oscillation? Let us discuss some of the aspect of some of the terms related to simple pendulum, which is oscillation. हम अभी पढ़ चुके हैं one oscillation क्या होता है। one complete to and fro motion of a bob of a pendulum is called as oscillation. That means अगर मैं इसको एक एक्सट्रीम से ले जाऊँ, ये एक टू हो गया और एक अगेन ये फ्रो हो गया, दैट मीन्स कि द वाइब्रेटरी मोशन, नॉट वाइब्रेटरी, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। ये आगे गया, देन एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम से अगेन, दूसरे एक्सट्रीम से अगेन अपने सेम पोजीशन पे आ गया। दैट मीन्स कि अपने वापस सेम पोजीशन पे आ जाने को, ठीक है, पूरा कंप्लीट वन ऑसिलेशन कहते हैं हम, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको छोड़ूँ, ठीक है, ये वापस जाएगा दूसरे एक्सट्रीम पे, ये पूरा क्या हो गया? एक टू, एंड देन अगेन वापस आना फ्रो, टू एंड फ्रो मूवमेंट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑसिलेशन, ठीक है, कि दैट मीन्स इट विल ऑसिलेट जस्ट लाइक दिस। तो ये इसका यहाँ से यहाँ तक जाना, दैट मीन्स इट इज वन हाफ ऑसिलेशन, वापिस आना अगेन हाफ ऑसिलेशन, ठीक है, हाफ प्लस हाफ टोटल फुल ऑसिलेशन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑसिलेशन. Now let us discuss what is time period of oscillation. It is the time taken to complete one oscillation and its SI unit is second. Same वही चीज़ कि कितना टाइम लगेगा भाई इसको यहाँ से यहाँ जाने में और वापस आने में, ठीक है। पूरा एक कंप्लीट ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज इट्स टाइम पीरियड, ठीक है। वापस आना देखो, ठीक है, दिस इज इट्स वन टाइम पीरियड. आप नोट डाउन करो, जैसे ही इसको छोड़ोगे स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दो, जैसे ही इसको पकड़ोगे अगेन stop watch end कर दो. So this is its one time period and one oscillation. This is called one oscillation. Okay, so this is one oscillation and this is called one time period. ठीक है. So now let us discuss what is frequency. ठीक है, what is frequency? It is denoted by term f and it is called number of oscillation in 1 second is called as frequency. The SI unit is second inverse और हर्ट्स. इस एक्सप्रेशन को आपको याद रखना है. इसका फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट क्या होता है भाई, या तो सेकंड SI यूनिट इज हर्ट्स, ठीक है. अगेन इट इज गिवन, हर्ट वाज वन ऑफ द साइंटिस्ट हुज नेम वाज in order to facilitate the scientist a name is given to a frequency, ठीक है, which is its SI unit, ठीक है. सो हर्ट एक साइंटिस्ट है जिनका नाम द फ्रीक्वेंसी के SI यूनिट को दिया गया है, ठीक है. एंड इट इज गिवन बाय सिंबल कैपिटल H इनटू स्मॉल z, ठीक है. ओके, इसका मतलब क्या हुआ आपको पता होना चाहिए. सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड. इसका मतलब कि एक सेकेंड में कितना ऑसिलेट करेगा. देखो
सपोज करो 1 सेकंड में ये 2 ऑसिलेशन हुआ इसका, ठीक है, 1 सेकंड में 2 ऑसिलेशन है, ठीक है। सो 2 बार ऑसिलेट किया ये, 1 ऑसिलेशन 2 ऑसिलेशन। सो इफ दिस सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग 2 टाइम्स इन 1 सेकेंड, ठीक है, तो that particular term is called as frequency. So it would be 2 hertz, ठीक है, and it is given by relation and it is also given by with the expression of second inverse, ठीक है। So that means कि अभी ये देखो 1 सेकंड में 2 ऑसिलेट किया, ठीक है, 2 बार ऑसिलेट किया, तो इसका कितना फ्रीक्वेंसी हुआ 2 हर्ट्ज, ठीक है। सो लाइकवाइज आपको पता होना चाहिए, सपोज करो इसका इफ इस 1 सेकंड में ये एक ऑसिलेशन इसका 2 सेकंड का होता है, ठीक है, एक ऑसिलेशन है इसका 2 सेकंड का, ठीक है, पूरा एक ऑसिलेट करता है, ठीक है, 2 सेकंड में, ठीक है। तो इसका टाइम पे, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि एक ऑसिलेशन है, एक ऑसिलेशन का टाइम कितना है 2 सेकंड्स, ठीक है। तो आपको नहीं 2 सेकंड में एक ऑसिलेशन है, ठीक है, तो एक ऑसिलेशन कितने सेकंड में होगा 1/2, सो दैट वुड बी इट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज अबाउट फ्रीक्वेंसी। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट what is the relationship between time period and frequency. It is, as you can see, frequency is equivalent to 1 by time period, ठीक है, time period of this particular simple pendulum, ठीक है। तो टाइम पीरियड सेकंड में होता है, ठीक है, तो आप इजीली यहाँ पे सेकंड में डालेंगे तो इसका यूनिट हो जाएगा सेकंड इनवर्स, और इट इज दिस एक्सप्रेशन इज आल्सो कॉल्ड एज हर्ट्ज, ठीक है। जो मैंने एक एग्जांपल और ले लो आप, ठीक है, देखो सपोज करो इसका टाइम पीरियड, इसका ऑसिलेशन है 10 सेकेंड्स, ठीक है, 10 सेकेंड्स है, ये 10 सेकेंड में इधर जाता है, 5 सेकेंड में इधर, फिर 5 सेकेंड में वापस, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया 10 सेकेंड, ठीक है। तो 10 सेकेंड में एक ऑसिलेशन है, ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन होगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 10 सेकेंड में एक ऑसिलेशन है, ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन होगा 1/10, सो 1/10 वुड बी इट्स फ्रीक्वेंसी। सो आप इजीली कह सकते हो अगर टाइम अगर 10 सेकेंड है तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा 1/10, ठीक है। आई होप यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, दिस इज अ प्योर मैथमेटिकल टर्म, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी हमेशा 1 टाइम पीरियड का इनवर्स है, दिस एक्सप्रेशन दैट यू नीड टू लर्न। ये सारी एक्सप्रेशन आपको चैप्टर साउंड्स वगैरह में भी पढ़ोगे, जैसे वेव्स एंड ऑसिलेशंस वगैरह में भी यही एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, ठीक है। ऑल्सो दिस इज the motion of this simple pendulum is also a oscillatory oscillatory का motion, and it is also periodic also. Why it is periodic का मतलब the motion that repeats itself after a fixed interval of time is called as periodic motion can be oscillatory, it can also be vibratory, it can also be circular. periodic motion कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है, like circular motion वापस आ गया वहीं पे पोजीशन पे एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद, तो ये क्या होगा, ये भी पीरियोडिक मोशन है, सर्कुलेट करना, ठीक है। वाइब्रेट करके वापस आया, ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन, दैट इज आल्सो पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेशन, टू एंड फ्रो मूवमेंट, दिस इज आल्सो पीरियोडिक मोशन। क्यों? क्योंकि आप ये अपने फिक्स्ड इंटरवल के बाद अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, ठीक है। such a motion is called as periodic motion, and periodic motion can be oscillatory, it can be vibratory, it can be circular motion, ठीक है। and one more thing, all oscillatory motions are periodic, but all periodic motions are not oscillatory, ठीक है। जैसे कि rotation of earth, revolution of earth around sun, that is periodic but it is not oscillatory, ठीक है, that is circulatory motion। ओके, सो एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन, ठीक है। इस सपोज करो इस टाइम दिस सिंपल पेंडुलम का लेंथ कितना है भाई, L है, ठीक है। मास पे ये जो टाइम पीरियड है मास पे डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये इसका लेंथ अगर L है, ठीक है, और इसको आप मूव कराओ, एंड इस पर्टिकुलर एम्बिएंट एनवायरनमेंट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G लेना है आपको, विच इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इफ इट इज गिवन तो आपको लेना है, गिवन है तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर नहीं गिवन होता तो ऑलरेडी आपको
9.8 लेना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट टाइम पीरियड नाउ। टाइम पीरियड का एक दो एक्सप्रेशंस देख लेते हैं एंड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटेशन इट वाज फाउंड दैट टाइम पीरियड का होल स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग का अगर एल लेंथ है, ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड एक्सपेरिमेंट से हमने पता किया, ठीक है, इस टाइम पीरियड का होल स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। तो आप इन दोनों का रिलेशनशिप ग्राफ बनाओगे टाइम पीरियड का होल स्क्वायर और लेंथ के बीच का, तो एक पर्टिकुलर स्लांटेड एंगल पे ये कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। सो अगेन टी स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू रूट एल, ठीक है। ये टी की वैल्यू दे जाएगी तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टाइम्स एल, ठीक है, रूट एल के बराबर हो जाएगा। ऑल्सो आपको ये भी पता होना चाहिए टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/रूट जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बाद, ठीक है। सो जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगा वहां टाइम पीरियड इस सेटअप का, इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कम हो जाएगा जहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है, ठीक है। तो आप इसको इस पर्टिकुलर सिंपल पेंडुलम को मून पे ले जाओ तो इसका टाइम पीरियड बढ़ेगा कि घटेगा, थोड़ा सा आप सोच के देखो। मून पे इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ एज दैट ऑफ अर्थ, दैट मीन्स वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g/6 है, ठीक है। तो वहां पे घट गया तो टाइम पीरियड बढ़ेगा कि घटेगा? ऑब्वियसली बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा वहां पे। तो यही अगर सेटअप को अगर मैं यहाँ पे सेम मून पे ले जाऊं तो ये इसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, तो दैट मीन्स ये थोड़ा स्लो हो जाएगा, ठीक है। सो अभी जो g ज्यादा है, ठीक है, और वहां पे g कम हो गया, ये g कम हो गया, ठीक है, तो टाइम पीरियड बढ़ गया। टाइम पीरियड ज्यादा बढ़ गया तो दैट मीन्स इट विल टेक लॉन्गर टाइम टू कम अगेन। टाइम ज्यादा बढ़ गया ना एक ऑसिलेशन का, सो इट विल टेक लॉन्गर टाइम टू कम अगेन, ठीक है। एंड one more thing, if I take this simple pendulum into outer space, what will happen? In outer space acceleration due to gravity is 0, अगर and so the 1/0 is equal to infinity, तो वहाँ पे अगर ये टाइम पीरियड आप वहाँ पे ले जाओ, आउटर स्पेस में ले जाओ, तो एज इट इज इसको इनफाइनाइट टाइम लगेगा। 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, 1/0 ये होता है इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। तो दैट मीन्स कि इनफाइनाइट टाइम लगेगा इसको वापस आने में, ठीक है, जाने और वापस आने में। एंड सेम इज द केस इफ यू विल टेक दिस सेटअप टू कोर ऑफ द अर्थ के कोर पे ले जाओगे, वहाँ पे भी ग्रेविटी 0 होता है, तो वहाँ पे भी टाइम पीरियड आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। सो नाउ लेट अस मूव ऑन। हमें पता है टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल, इट इज ऑल्सो इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/रूट जी। ये एक्सप्रेशन को डायरेक्टली करेंगे तो रूट एल बाई जी के बराबर होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब भी एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है तो एक कांस्टेंट टर्म जुड़ जाता है, इन दिस पर्टिकुलर पीरियड इट इज 2π। सो आपको याद रखना है ये एक्सप्रेशन, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π रूट एल बाई जी, ठीक है। एंड इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ, ठीक है। लेंथ इसका जैसे ही बढ़ाते जाओ, ठीक है, देखो एक मैं ले लेता हूँ एक्सप्रेशन, देखो सेम हाइट पे इसको अगर इसको लेंथ बढ़ाओगे, ठीक है, लेंथ बढ़ाने पे टाइम पीरियड भी लेंथ बढ़ाने पे टाइम पीरियड बढ़ जाता है, ठीक है। सो अभी देखो ये पर्टिकुलर लेंथ है तो इसका टाइम पीरियड ये है, अब मैं इसको लेंथ बढ़ा दिया है मैंने, तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाना चाहिए। देखो ज्यादा टाइम ले रहा है वापिस आने में, तो लेंथ बढ़ाने पे टाइम पीरियड भी बढ़ गया इसका। देखो लेंथ घटाने पे टाइम पीरियड फास्ट था, ये वापिस आ रहा था, ठीक है। लेंथ बढ़ाने पे तो दैट मीन्स टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इसको ज्यादा लॉन्गर टाइम ले रहा है। सो दिस यू नीड टू नो। नाउ लेट अस डिस्कस सिंपल पेंडुलम। एक सेकंड का सिंपल पेंडुलम और सेकंड पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के पास क्या होता है, इट हैज अ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड्स एंड इट हैज अ लेंथ ऑफ 1, द स्ट्रिंग लेंथ इज 1 मीटर। दैट मीन्स कि एक सिंपल पेंडुलम लूंगा मैं, ठीक है, उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड का होता है। अगर ये सिंपल पेंडुलम में पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये लेंथ 1 मीटर का होगा, ठीक है। द स्ट्रिंग लेंथ हैज टू बी 1 मीटर, ठीक है, ये आपका पूरा 1 मीटर का लेंथ होगा। तो अगर मैं इसको ले जाऊं तो वापस आने में इसको 2 सेकंड लगेंगे, तो दैट मीन 1 सेकंड जाने में 1 सेकंड वापस आने में, ठीक है। सो दैट इज टू एंड फ्रो मूवमेंट विल टेक अराउंड 2 सेकंड्स, ठीक है, सिंपल पेंडुलम का, अगर ये लेंथ पूरा 1 मीटर का ले लेते हो, ठीक है। सो आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा कि सिंपल पेंडुलम इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकंड पेंडुलम एंड हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकंड, ठीक है।
Okay, now let us discuss one of the example or numerical question. What is the ratio of the time period of a simple pendulum of a length 1 meter and 16 meter at a place? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वही चीज़ आपको बोला है, ठीक है. एक सिंपल पेंडुलम लिया है आपने जिसका सपोज करो ये लेंथ 1 मीटर का है, ठीक है. इफ इट इज 1 मीटर, ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा? लेट इट बी t1, ठीक है, लेट इट बी t1. ये t1 कितना होगा? 2 पाई रूट 1 बाय g. लेंथ हो गया 1 मीटर, तो 1 यहाँ पे लगा दिया आपने, ये यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन. तो टाइम पीरियड इसका ये होगा. अगेन अगर जो आपको सिंपल पेंडुलम का एक्सप्रेशन निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो? देखो सेम चीज, सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी, और लेंथ कितना लेना है आपको? 1 मीटर, ठीक है. इसमें पुट करो 1 मीटर, पाई की वैल्यू होती है 3.14, जी की वैल्यू होती है 9.8 ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. तो ये पूरा टर्म को आपको सॉल्व करने पे आएगा क्लोज टू 2 सेकेंड्स, ठीक है. तो आप खुद से भी आप घर में बैठे डिराइव कर सकते हैं एक्सप्रेशन. टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, ठीक है. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वही 1 मीटर दे रखा है इसका लेंथ, तो मैंने ऑलरेडी 1 लिया है. इसको एज इट इज मैं छोड़ देता हूँ अभी, क्योंकि इन दोनों का रेशियो अगर लोगे, ठीक है, तो इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा. नाउ आप क्या करना है, आपको लेंथ बढ़ा देना है, 16 मीटर लेंथ लेना है, ठीक है. दूसरा सेम सेटअप है, उसका 16 मीटर लिया आपने, ये मतलब 16 टाइम्स कर दिया आपने, तो इसका टाइम पीरियड लेट इट बी t2, ठीक है, दूसरा पेंडुलम का. सो t2 कितना हो गया? 2 पाई रूट l बाई जी, लेंथ इज 16 बाई g. ओके, सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विद लेंथ 1 मीटर एंड 16 मीटर एट अ प्लेस? तो इन दोनों का रेशियो, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट एन एक्सप्रेशन. इट इज इक्वल टू 1:4, क्योंकि ये आपका एक्सप्रेशन 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है, 1/g, ठीक है, 16 बाई ये हो जाएगा तो 1/4, ठीक है. इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ऑल द एक्सप्रेशन विल कैंसिल आउट, और ये रूट 16 इज इक्वल टू 4 के बराबर होता है, ठीक है. सो लाइकवाइज यू कैन डू द न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑल्सो. इसी स्टेप्स के न्यूमेरिकली करोगे आप, कर सकते हो, ठीक है. और सिंपल पेंडुलम के बारे में आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए. एट व्हाट पर्टिकुलर पॉइंट the time period of a simple pendulum may increase or it may decrease. It is directly proportional to length, root times of length, so it will increase. जैसे लेंथ बढ़ाओगे टाइम पीरियड बढ़ जाएगा. It is inversely proportional to 1 by root g. g बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड घट जाएगा, ठीक है. और डिफरेंट places पे how the time period of a pendulum may vary, we have already learned all these things. Okay, this is all about today's session. I hope you liked the video. Thank you.